السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کیمسٹری کا جو پورشن ہے اس میں کوشچن نمبر 1 ہے اور یہاں پہ 81 بھی آپ لوگ دیکھیں. پروپنل اینڈ پروپین ٹو ون آر وچ ٹائپ آف آئسومرز. ایک پروپنل ہے، اگر آپ لوگ دیکھیں ایک ہے پروپنل جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو ایک ہے پروپنل CH2CO اور یہاں پہ H ہے، اور ایک اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ پروپنون ہے. اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں تو ایک جو ہے ایلڈیہائیڈ ہے اور دوسرا جو ہے کیٹون ہے. ان دونوں کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو ان دونوں کے جو یہاں پہ جو ہے آئسومرزم ہے تو یہ اس میں اے آپشن بنتا ہے اینڈ دے آر کالڈ فنکشنل گروپ آئسومرز. پروپنل پروپنون کا جو ہے فنکشنل گروپ آئسومر ہے، اس میں اے آپشن ہے. کوشچن نمبر جو ہے اگر آپ 82 کو دیکھیں تو یہاں پہ 82 ہے. which of the following organic compound gives Fehling reagent. کون سا کمپاؤنڈ جو ہے یہ فیلنگ ری ایجنٹ دیتا ہے، اور فیلنگ ری ایجنٹ جو ہے یہاں پہ جو ہے تو 82 کوشچن تو جو الڈیہائیڈز ہوتے ہیں وہ فیلنگ ری ایجنٹ جو ہے دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈی آپشن ہے الڈیہائیڈ. تو فیلنگ ری ایجنٹ جو ہے یہ جو ہے ڈی آپشن جو ہے یہاں پہ اس میں بنتا ہے الڈیہائیڈ فنکشنل گروپ کے لیے. which of the following does not give ٹالرنس ٹیسٹ جو ہے، تو ٹالرنس ٹیسٹ جو ہے کیٹونز نہیں دیتے. تو اگر آپ لوگ دیکھیں کوشچن نمبر 83 میں جو ہے اس میں کیٹون ایسیٹون ہے تو ڈی آپشن، باقی سارے الڈیہائیڈ ہے تو ایسیٹون جو ہے یہ ریئیکشن نہیں دیتا. An aqueous solution of formalin is prepared from which of the following substance. کوشچن نمبر 83 کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ فارملڈیہائیڈ ہے تو اس میں بی آپشن اس کا آنسر ہے. فارملڈیہائیڈ یہ ہے اس کا 40% aqueous solution فارملین سولوشن ہوتا ہے. Question number 85 ہے which is the chemical characteristic reaction of carbonyl group of the following. اگر کاربونائل گروپس ہوتے ہیں تو ان کے جو کریکٹرسٹک ریئیکشن ہوتے ہیں وہ نیوکلیوفیلک ایڈیشن ریئیکشنز ہوتے ہیں. سو دا کریکٹرسٹک ریئیکشن آف دی کاربونائل کمپاؤنڈ جو ہے یہ نیوکلیوفیلک ایڈیشن ریئیکشن ہے. کوشچن نمبر 85 میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں جو ہے یہاں پہ یہ بی آپشن ہے. کوشچن نمبر 86 میں اگر آپ دیکھیں which of the following is a mixture of tolerant, تو امونیکل سلور نائٹریٹ سولوشن، امونیکل سلور نائٹریٹ سولوشن از نون از. تو کوشچن نمبر 86 میں اگر آپ دیکھیں تو اے آپشن اس میں بنتا ہے. امونیکل سلور نائٹریٹ سولوشن از نون از اے ٹالرنس ری ایجنٹ. which of the following is the correct order of solubility of the given aldehyde. کاربن نمبر جتنے انکریز ہوتے ہیں سالوبلٹی ڈیکریز ہوتی ہے، تو یہاں پہ جو سب سے لیس کاربن ہے تو وہ فارملڈیہائیڈ میں، پھر اس کے بعد ایسٹرلڈیہائیڈ، پھر پرونل ہے. تو یہاں پہ جو ہے 87 کوشچن نمبر 87 میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو سی آپشن ہے. The type of intermolecular attractive force is not present in aldehyde. تو وانڈر وال فورس بھی پریزنٹ ہے، پولر جو ہے انٹرمالیکولر فورس بھی پریزنٹ ہے، لیکن ہائیڈروجن بانڈنگ اس میں پریزنٹ ایبسنٹ ہے. تو یہاں پہ 88 میں جو ہے یہاں پہ بھی سی آپشن اس میں پریزنٹ ہے، ہائیڈروجن بانڈنگ آر ایبسنٹ. What is the oxidation number of carbonyl carbon in aldehyde. اگر آپ لوگ دیکھیں یہ الڈیہائیڈ ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ ایسٹرلڈیہائیڈ ہے تو یہ +1 ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں اور یہاں پہ جو ہے اگر میں ایسٹرلڈیہائیڈ کو یہاں پہ -2، یہاں پہ یہ +1 آکسیڈیشن اسٹیٹ. تو کوشچن نمبر 89 میں جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے یہ بی آپشن پریزنٹ ہے. کوشچن نمبر 90 کو اگر آپ لوگ دیکھیں which of the following compound resist oxidation. 90 کوشچن نمبر تو کیٹون ریزسٹ، کیونکہ اس میں اب وہ ہائیڈروجن الڈیہائیڈ کے ساتھ جو ہے وہ الفا ہائیڈروجن نہیں ہوتا اور اسی طرح کیٹون میں نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ ریزسٹ آکسیڈیشن کرتے ہیں. تو کیٹون جو ہے یہ ریزسٹ آکسیڈیشن کرتے ہیں، ڈیکمپوز ہوتے ہیں. تو الڈیہائیڈ آکسیڈائز ہوتے ہیں، پرائمری الکوہول آکسیڈائز ہوتے ہیں، سیکنڈری الکوہول آکسیڈائز ہوتے ہیں، آسانی کے ساتھ کیٹون ڈیکمپوز ہوتے ہیں، اس کی آکسیڈیشن جو ہے ریزسٹ کرتے ہیں. What is the oxidation number of carbonyl carbon in acetophenone. اگر یہ آپ کے پاس ایسیٹوفینون ہے، ایسیٹوفینون ہے تو یہاں پہ -2، یہ +2 آکسیڈیشن اسٹیٹ میں. تو آکسیڈیشن اسٹیٹ آف دی کاربن جو ہے یہاں پہ 91 میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ +2 ہے، تو اٹ از بی آپشن اس میں کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 92 کو دیکھیں which of the following reagent react with aldehyde and ketone easily. کون سا جو ہے اس میں easily، تو گریگنارڈ reagent اس میں آپشن بنتا ہے. تو 92 میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اے آپشن بنتا ہے. کوشچن نمبر 93 کو دیکھیں the type of hybridization that is present in aldehyde. تو کاربونائل کاربن جو ہے یہ sp2 ہائبریڈائز ہے، آکسیجن بھی sp2 ہائبریڈائز ہے الڈیہائیڈ میں. آکسیجن اور کاربن دونوں sp2 ہائبریڈائز ہے. تو کوشچن نمبر جو ہے اگر آپ 93 کو دیکھیں تو کوشچن نمبر 93 میں یہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی اے آپشن پریزنٹ ہے. کوشچن نمبر 94 کو اگر آپ لوگ دیکھیں کوشچن نمبر 94 which of the following reagent is used to preserve the dead bodies. تو اس میں سی فارملڈیہائیڈ موسٹلی فارملین سولوشن بناتے ہیں تو ڈیڈ آبجیکٹس کو آرگینزم کو جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے یوز کرتے ہیں. اے C2 oxime is the
कंडेंस प्रोडक्ट, ये आप लोगों के पास एसिटाल्डिहाइड है एंड यू हैव टू ट्रीट इट विद हाइड्रोक्साइम, तो यहाँ पे ऑक्साइम हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ, तो यहाँ पे जो है क्या बना लेता है, ये ऑक्साइम बना लेता है। तो एसीटोऑक्साइम इज अ कंडेंस प्रोडक्ट ऑफ एसीथेनॉल है, ये इथेनॉल के लिए ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 95 जो है ये इथेनॉल है, इसमें ए ऑप्शन है। द आयोपिक नेम ऑफ द कंपाउंड ये जो गिवन है, अगर आप देखिए ये कीटोन है, तो कीटोन में 5 कार्बोनाइल कार्बन जो है 5 कार्बन है अलॉन्ग विद द कार्बोनाइल कार्बन, तो ये जो है पेंटेन है, पेंटेन पूरा नाम लिखिए पेंटेन, और 1 2 और यहाँ पे जो है 2 जो है आप लोगों के पास डाई 1 है, तो एक 1 ये 2 ये 3 और ये 4 है, तो 2 4 डाई 1 जो है इस कंपाउंड का नाम है। सो इसके लिए अगर आप लोग देखें तो ये 2 4 डाई 1, तो इसमें सी ऑप्शन है। Question number 97, which reagent gives the same observation with the propanol and with the propanol? प्रोपनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपनॉल ऑक्सीडेशन करते हैं, तो प्रोपनोन बनता है, प्रोपनोन बनता है। तो ये जो है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं करता, टॉलरेंस रिएजेंट नहीं करता, ये सिर्फ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट करता है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 97 में अगर आप लोग देखें तो सी ऑप्शन बनता है। Acetaldehyde when treated with ethyl alcohol in the presence of dilute HCl, it gives acetals. तो एसिटल्डिहाइड जो है वो एसिटल्स जो है जनरेट करते हैं, दे आर कॉल्ड एसिटल। तो जिमिनल डाईथर्स ऑफ एल्डिहाइड्स, जिमिनल डाईथर्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर कॉल्ड एसिटल्स, इनको एसिटल्स कहते हैं। तो यहां पे जो है एसिटल्डिहाइड व्हेन ट्रीट विद इथाइल अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक मीडिया ट्रीट करते हैं, यू विल गेट एसिटल। अगर कीटोन हो तो फिर कीटॉल जनरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 को अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है which product will be obtained by the Grignard reaction when formaldehyde react with the ethyl magnesium iodide, ethyl magnesium iodide के साथ जो है जब रिएक्ट करता है, तो यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो ethyl magnesium iodide के साथ अगर ये रिएक्ट करता है, तो यहां पे जो है ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो यहां पे एक कार्बन जो है इसके साइड से और 2 कार्बन यहां पे, तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा आप लोगों का, प्रोपनोल होगा, प्रोपनोल। तो प्रोपेन जो है आप लोग पूरी जगह से देखिए 1 जो है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है यहां पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 100 को अगर आप लोग देखें, 100 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच कंपाउंड देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1 कार्बन एटम। अगर आप क्या करते हैं कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करें, तो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहां पे रिलीज होगा, डिकम्पोजिशन इसकी। तो प्लीज अगर आप लोग देखें तो इसमें जो ऑप्शन है तो ये सी ऑप्शन जो है करेक्ट है 100 में। Which of the following mixture represent the Wolff-Kishner reagent? तो 101 में Wolff-Kishner reagent में अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजीन होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ग्लाइक्साइम होता है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है इसमें भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें 102, which product is obtained on reaction of acetone with the hydroxyme? तो ऑक्साइम, हाइड्रोक्साइम जो है जनरेट होते हैं, तो एसीटोऑक्साइम इसमें ए ऑप्शन है। 102 में जो है अगर आप देखें तो ए, तो यही एसीटोऑक्साइम जो है ये बन रहे हैं, ये एसीटोऑक्साइम की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप 103 को देखें, क्वेश्चन नंबर 103 को अगर आप देखें, which of the following anhydrolysis produces carboxylic acid? Amides, amides की जब भी आप लोग जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए अल्कोहल की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, एल्डिहाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे जो है आपके पास डायोल बनते हैं, लेकिन अगर आप एमाइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एमाइड्स की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, कीटोन की हाइड्रोलिसिस भी डायोल बनते हैं। 3 स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ अल्केन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप लोग देखें तो यहां पे ये क्वेश्चन है, सो द 3 स्टेप क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, द 3 स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ अल्केन, अल्केन का अगर आप लोग करते हैं तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फर्स्ट स्टेप अल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं कार्बो। 3 स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट of alkane is carboxylic acid, ये carboxylic acid। 2 स्टेप एल्डिहाइड है, 1 स्टेप अल्कोहल है, तो ये अगर आप लोग डी ऑप्शन इसमें बनता है। क्वेश्चन नंबर 105 को अगर आप लोग देखें, सो प्राइमरी एमाइड इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी, अगर आप लोग देखें यहां पे एमाइन है ना, यहां पे एमाइन है, तो सॉरी यहां पे इज प्राइमरी एमाइड है, नॉट एमाइन, सॉरी प्राइमरी एमाइड इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ, प्राइमरी एमाइन इज नॉट अ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, ये जो है क्या है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, तो ये प्राइमरी एमाइड है। अगर आप लोग देखिए तो ये प्राइमरी एमाइड जो है यहां पे अगर आप देखिए ये प्राइमरी एमाइड है, इसको प्राइमरी एमाइड कहते हैं। तो प्राइमरी एमाइड इज अ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ अल्काइल साइनाइड, इज एमाइड कभी है और नाइट्रोल के, लेकिन प्राइमरी एमाइड इज नन ऑफ द अबव है, इसमें डी ऑप्शन है, यहां पे डी ऑप्शन बनता है।
Question number 106, when 3 moles of acetaldehyde undergo polymerization, तो यहाँ पे a trimer is formed that is called paraldehyde. उसको हम क्या कहते हैं paraldehyde. तो 106 को अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है यहाँ पे C ऑप्शन है. तो अगर आप लोग देखें ये आप लोगों के पास acetaldehyde है, acetaldehyde. तो acetaldehyde जो है अगर आप लोग जो है इनको क्या करते हैं, इनको ट्रीट करते हैं. अगर हम इसको ट्रीट करते हैं और से देखिए एसिडिक मीडिया में, तो यहाँ पे जो है ये इसके साथ रिएक्ट करता है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है और ये यहाँ पे रिएक्ट करता है. तो होता क्या है कि ये प्रोडक्ट जो बनता है ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कार्बन CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ये ऑक्सीजन है, ये क्या है ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये कार्बन, ये CH3 और ये हाइड्रोजन और ये जो है ऑक्सीजन इसके साथ, इसको पैराल्डिहाइड कहते हैं, पैराल्डिहाइड. तो ये पैराल्डिहाइड है. तो पैराल्डिहाइड इज अ कंडेंस प्रोडक्ट जो है पॉलीमेरिक ट्राइमेरिक फॉर्म है किस चीज का, एसिटाल्डिहाइड का. तो ये जो है C ऑप्शन इसमें बनता है. क्वेश्चन नंबर 107 को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है क्या है कि प्रोपेन टू 1 ऑन रिडक्शन विद व्हिच ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म प्रोपेन. तो ये क्लेमेंसन रिएजेंट, क्लेमेंसन रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड HCl, जिंक अमलगम एंड HCl, सॉरी जिंक अमलगम और HCl का जो है मिक्सचर है. तो ये B ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है. The impairment of the acuity of taste is due to, अगर आप लोग देखें तो जहाँ पे ये डिफिशियंसी होती है, जिंक की डिफिशियंसी होती है, तो ये जो है impairment of the acuity of taste is due to the zinc की डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे ये B ऑप्शन है, ये जिंक की डिफिशियंसी की वजह से. Which of the following is not a compound, is an example of compound of lipid? इनमें से जो है कौन सा जो है, which of the following is not an example of compound lipid? compound lipid इसमें कौन सा नहीं, compound lipid जो है अगर आप लोग देखें तो फास्ट सल्फोलिपिड जो है ये कंपाउंड ट्राइग्लिसराइड और स्टीरिक एसिड दोनों कंपाउंड लिपिड नहीं है. तो 109 में अगर आप लोग देखें तो ये D, ये जो है अगर आप D ऑप्शन इसमें है. क्वेश्चन नंबर 110 में अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 110 है which of the following undergo aldol condensation reaction? acetaldehyde जिसके साथ अल्फा हाइड्रोजन हो, कार्बोनाइल कार्बन हो और उसके साथ हो, if the कार्बोनाइल कार्बन हो और यहाँ पे हाइड्रोजन तो और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे aldol condensation इसकी वजह से होता है. Acidity of this proton. फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. 2,2-डाइमिथाइल जो है प्रोपेनॉल इसमें नहीं होता. और अगर आप लोग देखिए बेंजल्डिहाइड में भी नहीं है, तो सिर्फ इसमें होता है, तो इसमें अल्डोल कंडेंसेशन होता है. तो यहाँ पे ये A ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 1 जो है 11 को देखें, which of the following compound does not give Cannizzaro reaction? तो Cannizzaro reaction is not a characteristic reaction of the, किस चीज का, कीटोन का नहीं है, ये एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड का रिएक्शन है. तो कीटोन्स जो है वो Cannizzaro रिएक्शन नहीं देते हैं और यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए होता है. कीटोन जो है Cannizzaro रिएक्शन बिल्कुल नहीं देते. तो Cannizzaro रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं. तो प्लीज आप लोग देखिए Cannizzaro रिएक्शन इज नॉट, द कांसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कार्बोक्सिल जो है कीटोन, कीटोन पे जो है ये अप्लाई नहीं होता. तो क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप जो है यहाँ पे देखिए 111 है, 111, तो इसमें अगर आप लोग देखें तो D ऑप्शन है, एसीटोफिनोन पे Cannizzaro रिएक्शन का कांसेप्ट अप्लाई नहीं होता. Which of the following has the highest boiling point? क्वेश्चन नंबर 112 को अगर आप लोग देखिए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ये, तो जिसमें जो है आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो इस वजह से कार्बन नंबर सब में सेम है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा. Which product is obtained on hydrolysis of acetamide? एसेटामाइड की अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस करें तो ये एसेटामाइड है. अगर आप इस एसेटामाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं in the presence of acidic media, you will get acetic acid. ये acetic acid जनरेट करता है. तो क्वेश्चन नंबर 113 में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 113 में जो है ये B ऑप्शन है. ठीक है, B ऑप्शन है. Which of the following have pyrimidine ring structure? Uracil is pyrimidine, thiamine is pyrimidine, and cytosine is pyrimidine. तो यहाँ पे ये 114 में जो है D ऑप्शन जो है करेक्ट वन है. What will be obtained if the oxidation of acetophenone is carried out by strong oxidizing agent? अगर हम क्या करते हैं, what will be obtained if the acetophenone is carried out? अगर आप कीटोन की acetophenone, ये acetophenone है, और अगर आप इसको क्या करते हैं strong oxidizing agent के साथ इसकी oxidation करते हैं, तो what will be the expected product? तो यहाँ पे कौन सा expected product? You will get benzoic acid. benzoic acid की जो है formation होगी. तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 115 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड C ऑप्शन जो है आप लोगों के पास होगा. Which type of alcohol is obtained if Grignard reagent is reacted with ethanol? ethanol है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, बाकी ऑल एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं. तो यहाँ पे 116 में जो है आप लोगों के पास ये ऑप्शन है.
याद रखिए मीथेनॉल के अलावा all other aldehydes on reaction with the Grignard reagent followed by acid hydrolysis produces secondary alcohol. ये secondary alcohol produce करते हैं। तो ये क्या produce करते हैं? secondary alcohol जो है ये generate करते हैं। ये option है। क्वेश्चन नंबर 117 को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 117 which one have more नहीं which one have least pKa value, more नहीं है, least pKa value है। तो जो सबसे वीकेस्ट एसिड होगा उसका pKa वैल्यू सबसे लीस्ट होगा, सॉरी उसका pKa वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका pKa वैल्यू जो है सॉरी क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर which one have least pKa वैल्यू, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका pKa वैल्यू जो है लीस्ट होता है, जो वीक एसिड होता है उसका pKa वैल्यू। तो प्लीज आप लोग देखिए इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है सबसे कम हो तो वो है, तो दूध पहला जो है वो प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक एसिड है, सेकंड वन जो है वो प्रोपेनोइक एसिड है। तो सबसे जिसके साथ कार्बन नंबर कम होते हैं वही आप लोगों के पास बी ऑप्शन इसमें है। विद द इंक्रीज ऑफ पीकेबी वैल्यू, विद द इंक्रीज ऑफ पीकेबी वैल्यू, जब पीकेबी वैल्यू इंक्रीज होती है एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो पीकेबी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, बेसिसिटी के साथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है प्लीज गौर से देखिए ए ऑप्शन है। तो याद रखिए pKb वैल्यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। द वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 मोनोफ्लोरोएसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन द डाइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो ये जो है सबसे वीकेस्ट एसिड है, इसमें ए ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 120 nucleophilic addition reaction are resistant in carboxylic acid because due to the delocalization of electrons due to the low electrophilic nature of carboxyl group। so यहां पे जो है ये भी ए ऑप्शन है, तो ये जो है अगर आप देखिए इसमें भी ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 121 को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 121 जो है which one is not carboxylic acid derivatives among the following amino acids, इसके derivatives नहीं होते। amino acids are not the derivatives of carboxylic acids। The least reactive acid derivative among the following is a amides। amide जो है least reactive होते हैं क्योंकि वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, इफेक्टिव डिलोकलाइज बी ऑप्शन इसमें है। एसिड जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 123 को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 123 में कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज फॉर द ब्यूटेन डायोइक एसिड, तो ए के लिए जो है यहाँ पे ऑप्शन है। द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन नंबर जो है 124 को अगर आप लोग देखें द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप जितने इंक्रीज होते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड जो है इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसी वजह से जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 125 को अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 125 कार्बोक्सिलिक एसिड डिमराइजेशन इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें ए ऑप्शन बनता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिमराइजेशन होती है, ये डायमेरिक फॉर्म में आ जाते हैं, तो डिमराइजेशन इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन नंबर 126 को अगर आप लोग देखें कार्बोक्सिलिक एसिड इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रीजन प्रोड्यूसेस फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइज्ड कार्बन। तो अगर आप लोग देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप रिडक्शन करें तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब कार्बोक्सिलिक एसिड इससे बन जाता है तो यहाँ पे -1 -2 ये +3 ऑक्सीडेशन, तो +4 से +3 पे आना रिडक्शन है, तो यहां पे ये रिड्यूस प्रोडक्ट है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अल्केन प्रोड्यूस करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अल्केन प्रोड्यूस करते हैं, इसमें सी ऑप्शन है। अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 128 को देखें तो एस्टरिफिकेशन इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद, अगर आप देखें तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 128 में एस्टरिफिकेशन एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, अगर अल्कोहल तो भी एस्टर बनते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पे डी ऑप्शन है, दोनों के साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर बनते हैं। एसिड हैलाइड फॉर्मेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 129 में तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बायूरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की डिटेक्शन के लिए होता है, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 131 को अगर आप लोग देखें तो यहां पे which फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज थर्मली मोर स्टेबल, टर्शियरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है तो इस वजह से उसकी थर्मल स्टेबिलिटी मोर ज्यादा, एनर्जी लो होती है, तो टर्शियरी अमाइन जो है मोर स्टेबल होते हैं। RNA differ from DNA
by both A and B, तो अगर आप लोग देखिए ये टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड टाइप ऑफ शुगर यूनिट दोनों पे डिफरेंट होते हैं, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन होता है। When the inhibitor binds to the same active site, ये साइट है, साइड नहीं है, of the enzyme to which substrate bind, तो this is term as a competitive, यह इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, competitive, ये सी ऑप्शन में। जब दोनों इस कंपटीशन में लग जाए, एंजाइम भी जो है एंजाइम के साथ जो है क्या कहते हैं इनहिबिटर भी करंट उसी साइड से करंट होता है जिससे सबस्ट्रेट, तो फिर यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो जाती है, इसलिए इसको कम्पिटेटिव इनहिबिटर कहते हैं, कम्पिटेटिव इनहिबिटर, तो सी ऑप्शन है। कार्बाइल एमाइल टेस्ट जो है आप लोगों के प्रैक्टिकल से है और ये प्राइमरी एमाइंस के लिए टेस्ट होता है, प्लीज ध्यान में रखिए ये ए ऑप्शन है। ओके, द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट इन माल्टोज, ये डाइसैकेराइड्स होता है, तो ये 1,4 अल्फा 1,4 होता है 135 में जो है अगर आप देखें तो ये ए ऑप्शन है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 136 को देखें तो यहां पे जो है द टाइप ऑफ प्रोटीन यानी ई कोलाई जो प्रेजेंट होते हैं तो ये 3000 होते हैं, ये सी ऑप्शन इसमें। द टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज यूज्ड फॉर द लोअरिंग विस्कोसिटी ऑफ स्टार्च इज कंसीडर्ड टू बी एमाइलेज, तो ये 137, तो ये एमाइलेज इसके एंजाइम है, ये बी ऑप्शन है 137 के लिए। क्वेश्चन नंबर 138 को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 138, मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड एस्टर आर कॉल्ड बीवेक्स कार्नोबावेक्स बोथ ए एंड बी, तो ये जो है डी ऑप्शन है। वैक्सिस मोनोहाइड्रॉक्सी जो होते हैं तो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, तो उनको जो है हम क्या कहते हैं, वैक्सिस कहते हैं। रिएजेंट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड इज मॉलिश रिएजेंट जो होता है, तो क्वेश्चन नंबर 139 ये है ए ऑप्शन इसमें, मॉलिश रिएजेंट इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में अगर आप लोग देखें तो the benzoic acid is the oxidized product of benzyl alcohol is also oxidized product of benzaldehyde, दोनों का oxidized product है, तो ये डी ऑप्शन इसमें बनता है। तो ये इनके जनरल जो है अगर आप लोग देखें, आप लोगों की केमिस्ट्री का डिस्कशन है और इसमें जो है अगर आप देखें तो डिफरेंट बिल्कुल आसान सा रिएक्शन है, सिर्फ जो है इन 3 चैप्टर से जो चैप्टर एक्सक्लूडेड है तो उनको जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।